बिकॉज अभी हमें वेट ही करना है 2-3 मिनट। हाँ जी, करें स्टार्ट फिर। कल हमने क्या किया था? हाँ जी भाई, बता सकते हो कल हमने क्या किया था? Am I am I audible to everyone? Am I audible? Yes, sir. ओके, मैं वह पूछ रहा हूँ ना, कल हमने क्या किया था? सर हमने पास बाय वैल्यू, हम्म, so we learned how to pass parameters to a function. अच्छा, ओके। चलो, अभी हमने स्टिंग किया था, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है फॉर यू ऑल, ठीक है। उसके बाद मैं फिर आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो हम एक स्किप कर गए थे पीछे। तो उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। राइट ए कोड, ओके, 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू change the case of this thing, okay, to change the case of this thing. I think the question is clear to everyone. If the string is, let's suppose, small abc, then it should become the capital abc, okay. I think the question is clear to everyone. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, that you guys are supposed to do. तो आपके पास अभी जो टाइम है वो 5 मिनट है, यू आर सपोज टू सॉल्व इट, ठीक है जी। तो मैं 5 मिनट के बाद आपके पास आ रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे करते हैं। तो आई होप एवरी वन विल अटेम्प्ट इट। इन द मीन वाइल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, बाकी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं, अगर आपके में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ लो, अदरवाइज यू आर सपोज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन।
हाँ जी भाई, बना क्वेश्चन, बना आप लोगों का? हाँ जी, एनीवन डिड अटेम्प्ट इट? हाँ जी भाई, प्लीज टेल मी, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ जी, एनीवन अटेम्प्टेड इट? एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. तो किसी ने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? Sir, I've tried. हम्म सर हम जो स्ट्रिंग लेंगे, हम्म सर अगर वो तो लोअर केस में है, हम्म सर तक चलाएंगे अगर वो अगर जब तक उसका कैरेक्टर नल नहीं आता तब तक हम लूप चलाएंगे, और अगर वो लोअर केस में है तो सर हम उसमें से 32 माइनस कर देंगे हाँ, यही है ताकि कॉन्सेप्ट, यही है। हमारी Okay, यस now सर। understand. Okay, good. You attempted it. Okay, good. So now there are two ways to do the same. The question was that you are supposed to convert this thing into the uppercase, and how it is possible. There are two ways to do the same thing. The one is the predefined function. The function is available into the string library. So I'm showing you a little bit that part. So let's suppose this one is a library that you must have to be imported before use to prior to use the string functions. Okay, the library is string.h. So we will discuss today in great detail what are the various function inside this. Okay, so don't worry about it. If you don't know anything about it today after attending this lecture, you will definitely get to know what exactly the string.h. Okay, so first of all that I am getting a string. So you know how you can get string.get of str and the size of this one that you are supposed to pass. Okay, so after that what what next that you are supposed to do? So simply that you can do C out of the method is strupr. Okay, this one is the one way, very simple way, and you are supposed to pass this thing over here. Okay, this is only one or two line of code. Yes, this is perfectly work fine, there is no any error. Okay, so the string upper is the method which is available into the string.h library, and you are supposed to use that. That's it. This is the predefined things. You don't worry about it. Okay, if you don't have any knowledge about this, so don't worry, have patience. Today we are going to discuss about this. Okay, but what else if you don't know about it? Now I'm coming to that point. You guys don't know what exactly this thing.h, and the interviewer asks you without using this thing.h library, then how you are supposed to perform this kind of things? Okay, now understand this concept. What you can do, to convert this thing into the uppercase. Now you are supposed to perform a loop. Okay, while you know let's suppose I am making a counter that is the c is equal to 0, and here the string that which contain your string. Let's suppose you enter the string this one, for example, abc. Okay, small abc. Okay, this one is the string which is a array, and it contain a, b and c. Understand this point. Okay, let me write it very clearly, neatly. So a, b and c. Okay, so as we know, the capital A is 65. Okay, this is the ASCII value of the capital A, and the small a, the difference of 32 characters. Okay, so if you are not aware about it, so I will show you the concept for the same in the Python. Okay, so you guys will very much familiar about this thing. I think you everyone knows about it. So let's suppose I want to convert this CHR, right? Okay, CHR of A. So CHR, not C char. The function name is CHAR. The function was what was the name of function? I forgot. CHR of 65. Okay, yes. Now you can understand it. If I am try to convert this 65 into a character, then what I am getting A. Okay, I am getting A. So here I am adding 32. So now I am getting
small a. Now you guys are clear about it. Okay, the 97 mean the 97, the value of the 97 is small a, the value of capital A is the value capital A is 65. So there is a difference between 32 characters. Okay, there is a difference between 32 characters. So let's suppose I enter 97. Okay, I entered 97 and now I want to convert it into 65. What mathematics behind that? You must be convert it. You have to be decrement this thing with 32. Okay, 32 steps. Now you will get 65. After getting 65, I'm converting that thing into the character and you are getting the A. You are getting the A. So this one is the fundamental behind that. So understand it. If I make the same code inside the Python, so inside the Python, let me show you. There are two predefined function, char and order. Okay. So let's suppose I want to fetch it out the order. Let's suppose the user enter A. Okay. The string. Let's suppose the string. The user enter this one A. I'm running one by one string. Okay. The string is this one. That is the capital A, or you can say the small a. Okay. Now you want to convert it into the capital A. So first of all, that what you are supposed to do, you have to find out the mathematical value behind that. Okay, so for there the function name is, or don't worry about it if you don't know about Portal, you just enjoy the words and enjoy the code on the screen. Okay, then if I want to find it out, yeah, sorry, someone's try to say, I know who is this. If you have any question, please ask, otherwise mute yourself. I know who's this. Narinder, please mute yourself. Narinder. Okay, so I am muting. Okay, so order. Now the order of A, you will get 97. Order of capital A, you will get the 65. So you enter 97 basically. If I convert this thing into the mathematics, that means you enter 97. You enter 9 because string is nothing. Keep this point into the mind. String is nothing for computer. If you want to perform in future NLP kind of things, that is the natural language processing kind of things. That is the a part of the machine learning as well. If you want to perform NLP, it's mean that you are not playing with string. You are decoding that string into the mathematics. Keep this point into mind. Okay. So you're decoding it because system doesn't know mathematical things, mathematical models doesn't know what is string. They know only the mathematics behind that. So keep this point into the mind. Whenever you're dealing with strings, this type of, the activities that you want to perform with this thing, you have to into the mathematics. Okay. In the case of the NLP, natural language processing, one of the most demanding, the area in the context of the machine learning as well. For example, sentiment analysis, you are typing something, you are writing something, immediately that you are getting that you are positive person or you are a negative person. You buy a product from my company and after that, after using some day, you are marking some reviews and I am identify that reviews, whether this review is positive or whether this review is negative. Let's suppose I am Amazon, I have million of reviews. Now I want to find it out which product has the positive review, which product have the negative review with human being. This is not possible. If I give you million of text and I am saying you, okay, find it out which one is the positive text and which one is the negative text, you will take long time, even months, even years. And if I talk about months, if you talk about seconds even, you are getting a huge data within seconds. So whenever you have to play with this thing backend, somehow you are supposed to use the mathematics because mathematics is highly used for these kind of things. Just wait for a second. Just give me 1 second. Hello. Okay. Okay. So keep this thing into mind. So now how you can find it out? You enter capital A. Okay. The capital A means 97. If I did it 97 minus 32, what I'm getting? I'm getting 65. Now I have to convert it into the character.
Now you are getting capital A. So this one is the logic for the same. And inside C++, you are not supposed to take the help of any kind of you can say this order or character kind of thing, because it automatically treated like this. Okay. So I am showing you. Wait for a second. I am writing the code for the same. Just give me 1 second. Okay, just give me 1 second. Okay, so I'm writing the code for the same. How the things are happen. I'm writing, just describing a simple code for you guys. Okay. So let's suppose your string, whatever string that we have this string str. Okay, we get from the user, and after that, what I'm doing, I'm iterating the entire string while str of, just imagine this one is the counter that's starting from 0. Okay, not equals to this one. So we know this one is the null character. That's mean the end of this thing. Now in this, if what you're supposed to do, if str of I, okay, str of I greater than equals to a, and the end limit str of I less than equal to, then what you are supposed to do, simply, very simple, str of I is equal to str of I minus 32. That's it. And I plus plus. That's it. This one is logic for this. That's it. Okay. So this one is, because automatically it is converting into the numerical terms. Okay, automatically that you are performing numerical things. So automatically that minus 32 is deducting from it. Okay, because this is the property of C language, that you can consider something like this. You don't need to do any extra effort, because earlier we are taking a character array. Okay, that's why. So this one is the logic, very small logic and very simple logic. If you want to convert the small thing to the upper one, you have to just print, you have to implement this one. That's it. Plus and minus. And I recommend it to everyone, kindly do the practice for the same. Kindly do the implementation for the same after end of this class. So this is only 2 lines of code. You can click a photo for the same. Okay. So moving ahead. So this one is very small logic and very small useful program. Sometime it can be used, or normally what exactly we do, we use the string upper library for the same and the string low library for the same. We will discuss today in great detail. Don't worry about it. Okay, so moving ahead with one more interesting and one of the most important, not you can say the most important, one of the important program that we skipped in the case of the functions as well. So I am taking that one. Let me show you what was that. Okay. So this one is the code. This one is the program that you are supposed to design. Can you please design this pattern? Anyone is aware about this pattern? Can you please tell me? Anyone is aware about this pattern? What is this? If you know, can you please name out this pattern? Anyone attempted this pattern? Fibonacci series. No, it's not a Fibonacci series. Who give the answer? Okay, any one of you? Anyone else who knows the name of this pattern and who tries to attempt this pattern? Sir, it is the pattern we use to find multiplication. Maybe. Sir, it starts with P. I forgot the name. This is the pattern of the Pascal's triangle. And this question is asked n number of product level interviews. Okay. So according to my experience, if the students are, attempting the product level companies interviews, at that time, most probably this question was there.
Okay, so I will try to make today because it's a little lengthy question and we are supposed to take some time, but the code is very easy. But the mathematics behind that is little tricky. Not tricky that you guys are perform these things into your college days or even into the school days as well, in the 10th standard as well. Okay, so I'm taking this question today and it will take around 30 to 35 minutes to explain this concept. If you don't know, then I will proceed. If you know the solution for the same, though I am not wasting my time for this. What do you say? Should we proceed for the same or should we move to the next? Anji, please. Proceed with this question. Sorry, I didn't get anyone. Anji, please raise your hand if you want to perform this, because it will take 30 to 35 minutes. Okay, everyone. Okay, good. So I'm proceeding with this one, and this one is again very important question in the context of the interview. As I already told you, in the product level companies, it might be asked. Okay, so this one is a Pascal triangle. So when I talk about the Pascal triangle, so this thing can be implemented with two ways. You can implement this thing with two ways. The one way is the logical way. Okay, I will show you the code how you can perform this logically. Okay, and the second one is pure mathematical. Okay, pure mathematics, where you will learn about the binomial expression and you will learn about the polynomial expression. Okay, that we already learned this kind of things into our school days in the 10th standard or into the 9th standard as well. Then we will understand the coefficients. Okay, then you will understand the combination formula. So these four things are important in the context of the mathematics when we are supposed to solve this binomial expression. That's why industry are mostly asked into the interview room, if they give you this type of pattern and you are solved to this pattern and you are supposed to focus on these kind of things, that is the binomial, polynomial, coefficients and the combination. Okay, code is very simple, trust me, code is very simple. If you understand this concept, if you understand this mathematics, you can write a code within 1 or 2 minutes. I can bet you. Okay, I can bet you. But the thing is that you must have, we must have to understand this mathematics. Okay, or how we can implement this mathematics into this particular pattern. If I observe carefully, okay, so first thing is I am not proceeding with mathematics. First, I am proceeding with logically. Okay, so if I clearly observe this pattern, what pattern that you come to know? What pattern that you come to know? The pattern is this one. Yes, this is the pattern. If I structure basically, if I show, observe carefully, so this is the triangle structure. If I observe carefully, okay. Now instead of these stars, you are supposed to print over here these values. Okay, so first I am focused on purely logical. Okay, not mathematical way, the purely logical way. So if I clearly observe it, on the left hand side that you are getting 1. Okay, on the right hand side you are getting 1. Okay, here what you are getting 2. Here what you are getting 2, 3, 3. Okay, here you are getting 4, 6, 4. Here you are getting 5, 10, 10, 5. Okay, so how these things can be achieved? So if I want to achieve this, if I add these two, okay, 1 or 1, 2, now you will get 1 plus 1, 2. If you add these two, 2, 1 plus 2, that is the 3, 2 plus 1, that is the 3. Okay, if you again add these two, 3 plus 1, that is the 4, 3 plus 3, that is the 6. Okay, 3 plus 1, that is the 4. Okay, if you again add these two, 4 plus 1, 5, 6 plus 4, 10, 6 plus 4, 10, 4 plus 5, 4 plus 1, 5. So now you came to know this is the hidden pattern behind it. This is the hidden pattern behind it. The entire logic, the logic that we discussed a number of times, this one is the logic for the same. But instead of printing of these stars that you are supposed to print, okay, you are supposed to print these patterns. Okay, just give me 1 second. Just give me 1 second. Hello.
हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी मैडम, हाँ जी मैडम, आज मैं आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, मैं रोपड़ ही आ रहा हूँ आज। ठीक है मैडम, ठीक है, डन। ये रामलीला ग्राउंड के पास वाली ब्रांच है ना? ठीक है मैडम, डन डन। Okay, so understand this point. So this one is the hidden pattern for this particular logic. Okay, so entire the logic is same. Entire the logic is same. Whatever that we did into the nested for loop, you are supposed to print this pattern. But this time, instead of printing these stars, you are supposed to print these kind of things. Okay, so our 70% logic is same. So our 70% task that we already achieved in the nested for context. But here you are performing this logic. So now the question is how you can perform this logic. So there is very small trick that that easily can be achieved these kind of things. So I am showing you that. So initially I am taking a variable that is the one. Okay, that I am taking a variable that is the one. For printing these one, whenever the loop will start, it will print one, because if I clearly observe it, every time when the row is started, it starts from 1 and it is ending again. This one is the constant, it is ending, okay, and again it is ending with 1. So for printing this one, okay, for printing this one, I am taking one constant like this, C out of this one, okay, this one. So I am taking this constant. But for starting this printing loop, understand this loop, know the responsible for printing, that is the K loop. Okay, that is the K loop that mostly run for your columns as well. So if you keep remember, first loop is I loop, okay, and the second loop is J loop, who is supposed to maintain the spaces, and the third loop is K loop, which is responsible for printing. Prior to print, okay, prior to execute this K loop, I am setting down in every iteration the n value is equal to 1. Okay, n value is equal to 1. That's it. So I have to start this n from 1 for every iteration when the printing is started. So this is one funda. Okay. And the second, what exactly that you are supposed to perform, that is the important one. If I implement this code, n is equal to n multiply your rows minus columns divided by your column plus 1. That's it. This one is a funda. That's it. This one is a logic. Instead of printing of star, that you have to start the n value always in the case of the columns always from 1, and after that inside that loop that you are supposed to perform this logic. That's it. You will get your output. This is a very small thing. This is a very small logic. Okay, if I implemented it, then you will come to know. You will get the entire thing. So I'm showing you this is with some practical. Okay. So let me open your. Okay, so I am star pattern is not available. Palindrome prime series. I think the star pattern program is not available with us. Okay, let me check. No. Okay, so let me write a code for you guys. So I'm writing a the star pattern same. So save as Pascal's dot C++. Okay, sorry, PP. So I'm writing the code so you guys will enjoy the logic for the same, and it's very simple, not complicated. So okay, I'm writing the little fast because this is we already discussed the how you can print the pattern. Int I is equal to 0, as we know, I less than 6 I am taking, okay, for 5 I plus plus. Okay, very good. Then another loop which is responsible for your you can say for your spaces. Okay, for your spaces, the same logic that we already discussed. Okay,
and here this loop is starting for, let's suppose, for spaces. S is equal to you can say the 6, so S greater than 6, S minus minus. Okay, so this one for spaces, so this one for spaces, so this loop is maintaining the spaces that we already discussed. Okay, and the third loop is responsible for printing, so control C, no, control V. Okay, so this time it's a K loop. K is equal to 0 and K less than the K is less than I and K plus plus. Okay, and this loop is responsible for, we know, the printing pattern. Okay, those stars सर is there. सेकंड लूप, हाँ जी, कोई मिस्टेक है? सर सेकंड लूप ऐसे, हाँ जी, सेकंड फॉर लूप। हाँ, क्या हो गया उसको? ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है? सर 1 से नहीं चलेगा। S इज इक्वल टू 6 लिखा है सर आपने, 0 नहीं आएगा वहां पे। हाँ, वही यहाँ पे यस यस ठीक है। यस 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 यस, यस सर। ओके यस, तो सी आउट ऑफ स्लैश एन, ठीक है जी। तो ये मैंने अपना वही कोड जो हम बहुत बार कर चुके हैं, है ना, we attempted this code n number of times, so I am saving it. Okay, so you guys will familiar. Okay, so okay, so run this code g++ pascals.cpp. So wait for 1 or 2 seconds because it will take time in first attempt. Just wait for a second. Okay, so let me show you. Okay, so I did a mistake. Where did I mistake? For here. So after print that, you are supposed to perform this. Where did we mistake? सर जो आपने पहली लूप सेकंड वाली लूप लगाई है स्पेसेस वाली, वो हम एस को 6 से क्यों कर रहे हैं, 0 से क्यों नहीं करेंगे? हमें स्पेसेस नहीं, पहले वो हमें चाहिए। उल्टा चलना है ना, वो तो हमें उल्टा चलना है। स्पेसेस तो पहले चाहिए सर, पहले नहीं स्पेस आएगी, जैसे कि फर्स्ट आपने वो रो क्लास में पहले मेरी वो सर क्लास सेकंड लूप में पहले स्पेस आएगा। नहीं, आपने वो क्लास अटेम्प्ट की थी मेरी, कौन सी? जिसमें मैंने ये ट्रायंगल्स आपको बनानी सिखाई थी। हाँ जी सर की थी। उसमें मैंने सर क्या सर करवाया एक था? और देखो सर, x इक्वल्स टू 0। हाँ जी, हाँ, 0 की जगह आई आएगा। Yes, we did this mistake. Yes, now the printing pattern is ready. 0 की जगह आई आएगा। ये लो, आपने शायद वो मेरा लेक्चर मिस कर दिया था, तो मैं एक छोटा सा आपको रिकैप सा दे रहा हूँ। तो हमने जब ये ट्रायंगल बनाया तो इसमें हिडन पैटर्न क्या था? इसमें हिडन पैटर्न ये था कि अगर मैं इसको बक्से में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 5 स्पेसिस मिल रही हैं, फिर आपको 4 मिल रही हैं, फिर आपको 3 मिल रही हैं, फिर आपको 3 मिल रही हैं, फिर 2 मिल रही हैं, फिर 1 मिल रही है, फिर आपको 0 मिल रही है। तो यही बात तो हो रही है यहाँ पे, तो उल्टा ही चलेंगे ना हम। तो 5 4 3 2 1, बिकॉज दिस सेकेंड लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिस दैट आई डिस्कस इन ग्रेट डिटेल। आप शायद भूल चुके हो, वो कॉन्सेप्ट, तो आप एक बार रिवाइज करो। हाँ, याद आ गया ना? यस हाँ, यस सर, यस सर। हाँ, अगर तो वो आपको रिवर्स वाला बन गया। हाँ, वो ये कोई बात रिवर्स नहीं, क्योंकि आपकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो 20 दिन के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं आपको अपने पर्सनल चैनल, जो मैं देता नहीं हूँ, सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मेरे पास पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा चैनल है, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा चैनल है। अगर आपको कोई भी मिसप्लेस हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ 20 दिन की है,
ठीक है। तो ये मेरा दूसरा चैनल है प्रोग्राम्स विद नितिन सर। तो ये थोड़ा मिक्स सा चैनल है, ठीक है। मैंने इसको बनाया है सिर्फ टेक्निकल चीज़ों के लिए नहीं, कुछ और चीज़ों के लिए भी। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो कंटेंट है ये है C++ ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि आपका जो अवेलेबल है कंटेंट वो 20 दिन के बाद अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम मिलेगा अगर आपको कोई चीज़ मिस हो जाती है। हाँ, ये अगर आप पाइथन भी पढ़ना चाहते हो तो ये सारी पाइथन उसमें इंग्लिश में है, ठीक है जी। ये सारी पाइथन इंग्लिश में है, ये वाली, हाँ ये वाली भी इंग्लिश में है और ये वाली भी इंग्लिश में है। ये दोनों जो क्लासेस हैं ये पाइथन फॉर आयरलैंड बैच है मेरे, दोनों ये खत्म हो चुके हैं। कंप्लीट कोर्स है पाइथन का, 2-2 घंटे, 1.5-1.5 2-2 घंटे की एक वीडियो है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास ये प्लेलिस्ट है, ठीक है जी, पाइथन ऑनलाइन क्लासेस। तो चॉइस इज अगेन योर, ठीक है ना। तो आपको इसमें पाइथन भी मिल जाएगा, आपको इसमें आपका C++ भी मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो अवेलेबल रहता है 20 दिन, लेकिन मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 13 और 14 वीडियोज हैं जो बढ़ करके आज 15, अगर 13 है तो 14 हो जाएंगी, अगर 14 है तो 15 हो जाएगी। एक मिनट, ये आई थिंक आपकी जो वीडियोज हैं ये आज 14 हो चुकी हैं, ठीक है। मैंने अभी कल वाली भी अपलोड कर दी। तो आप इस चैनल कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो तो अच्छी बात है, नहीं करना तब भी ना करो, लेकिन अगर आपको कुछ देखना है तो यू कैन वॉच फ्रॉम हियर, ठीक है। और मेरा जो दूसरा चैनल है, ठीक है, वो मेरी कंपनी का चैनल है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल चैनल है और ये मेरी कंपनी का चैनल है। तो ये इसमें भी आपको पाइथन मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें आपको पूरा पाइथन नहीं मिलेगा क्योंकि ये सबके लिए ओपन है। तो वो जो चैनल है मेरा दूसरा वो सबके लिए ओपन नहीं है, इसमें मिक्स है कंटेंट सारा क्लाउड। इसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको भी अगर आपने, ये है US डेटा टेक्नोलॉजीज, ठीक है जी, मेरे चैनल का नाम। तो ये मेरी कंपनी का चैनल है, बेसिकली है तो मेरा ही, अल्टीमेटली मैं ही इसको मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर अब वीडियो थोड़ा कम कर दिया अपलोड करना, टाइम नहीं मिल पा रहा। तो अगर आपको Azure सीखना है तो ये 3 घंटे का वीडियो है, इसमें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना है मशीन लर्निंग के लिए तो अभी 4 वीडियोस हैं, तो प्रोबेबली इसमें और आएंगी। ये पाइथन के 7 प्रोजेक्ट हैं और ये 7 के 7 प्रोजेक्ट लाइव सिनेरियो के बेसिस पे हैं, ठीक है ना। कोई वो आपको वो नहीं मिलेगा, प्योरली लाइव मिलेगा। पूरा यूट्यूब सर्च कर लेना, आपको कहीं पे भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा इन प्रोजेक्ट के, स्पेसिफिकली इन प्रोजेक्ट, क्योंकि ये मेरे रियल टाइम के जो एक्सपीरियंस है मैं उसी को शेयर किया। तो ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये 3 वीडियोज हैं जस्ट फॉर द टाइम पास। अगर आपको टच पेन बनाना सीखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें होगी एक आधी वीडियो होगी जिसमें मैंने टच पेन बनाना सिखाया था, कैसे आप नॉर्मली एक टच पेन बना सकते हो। अगर आपको पाइथन सीखना है फॉर सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, तो इसमें 25 वीडियो है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पाइथन कैसे काम करता है और उसको अगर आपने पेपर क्रैक करना है तो आप कैसे पेपर को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। ये है मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स का मशीन लर्निंग के लिए, तो उसके लिए ये, ठीक है। ये क्लास 6 का मैथमेटिक्स है। अगर आपको कोई भाई बहन 6 क्लास में पढ़ता हो और वो कोई कंसेप्ट देखना चाहता हो तो ये 6 क्लास का है, और ये 7th क्लास का मैथमेटिक्स है, ठीक है। क्योंकि ये चैनल स्पेसिफिकली मैंने बनाया है स्टैट और मैथमेटिक्स के लिए था, ठीक है जी। उसके बाद इसको फिर मशीन लर्निंग में थोड़ा सा कन्वर्ट करना है। अभी मशीन लर्निंग का इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, प्रोबेबली मैं एक आधा प्रोजेक्ट इसमें डाल दूंगा। तो ये 2 चैनल्स हैं, ठीक है ना। तो जो आपकी क्लासेस हैं वो आपको मिलेगी प्रोग्राम्स विद नितिन सर वाले चैनल में, ठीक है। वो मैं चैनल का लिंक सिर्फ उन बंदों को शेयर करता हूं जो मेरे पास पेड है, ठीक है। लेकिन आप लोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका कंटेंट उधर पड़ा है तो आप देख सकते हो, ठीक है जी। प्रोग्राम्स विद नितिन सर एक मेरा चैनल ये है, अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा चैनल है ये मेरा US डेटा टेक्नोलॉजीज, ये सबके लिए ओपन है, ठीक है, ये सबके लिए ओपन है। तो दिस वन इज द US डेटा टेक्नोलॉजीज, ओके। चलो, सो अगर कोई भूल जाता है तो आप लोग रिवाइज कर सकते हो। नाउ आई एम मूविंग अहेड, तो मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। नाउ आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि ये पैटर्न कैसे बना है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि सर अभी हमें वो अचीव नहीं किया जो हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी तो हमने ये सिर्फ उसका स्ट्रक्चर अचीव कर लिया और वो भी आप भूल चुके थे। सो अब स्ट्रक्चर अचीव करने के लिए मैंने आपको लॉजिक बताया था। जब भी आपने प्रिंटिंग लूप को स्टार्ट करना है, ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू 1 रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग n इज ऑलवेज 1, और यहां पे जो लॉजिक आएगा, ठीक है जी, रेदर देन टू प्रिंट दिस, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सी आउट ऑफ n करना है, ठीक है ना। सी आउट ऑफ n करना है, यानी कि आपको n को प्रिंट करना है। तो n की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी रहेगी,
n की स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा 1 रहेगी जब भी प्रिंटिंग का काम होगा। ठीक है, अगर मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाऊं तो अभी अगर आप इस पैटर्न को देखो तो एक तो पंगा बड़ा है इसमें। ओके, अभी अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देखो तो 1 1, यानी कि ये हमने 1 1 अचीव कर लिया। ठीक है ना, सिर्फ आप लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम के ऊपर फोकस करो। ठीक है, यू अचीव दिस कॉलम, दैट इज 1 1 1 1 1। ठीक है ना, अब आपने 1 1 अचीव कर लिया, अभी इसको छोड़ दो, जो पीछे है ये सारा कीप असाइड। ओके, सो अब मैं आगे क्या कर रहा हूं, अब जो मैंने आपको लॉजिक आपको अभी बताया था उस लॉजिक को मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, यानी कि मैं n की वैल्यू को चेंज करने जा रहा हूं। ठीक है, अब n की वैल्यू को चेंज करने का एक छोटा सा ट्रिकी सा लॉजिक है, n इज इक्वल टू n मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर I माइनस k, ओके, योर I माइनस k डिवाइडेड बाय k प्लस 1, दैट्स इट। तो ये छोटा सा लॉजिक है, तो ये लॉजिक को इंप्लीमेंट किया। अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। अभी भी आउटपुट आई है लेकिन हमारी जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं आई, k अपना कैपिटल है। ठीक है जी, k अपना कैपिटल है। ओके, सो अभी जो हमारी आउटपुट आई है वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आई है, लेकिन कुछ हद तक हमारी आउटपुट आ चुकी है। यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिक है, यू कैन चेक इट आउट। अभी भी लेकिन डिजायर्ड आउटपुट नहीं आई, लेकिन आधी से ज्यादा आउटपुट दैट यू हैव टू बी अचीव्ड। 1 1 2 perfectly. Okay, so here you must have 1 1, okay, and then 1 1 to 1, okay, 1 3 1, okay, and 1 4 6 4 1, okay, and 1 5 10 10 5. so अभी रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आई, तो रिक्वायर्ड आउटपुट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा लॉजिक, छोटी सी चीज है जो आपको स्टैटिक है, जो आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। वो क्या इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, हमेशा पहली लाइन यानी कि रन होने के बाद, इंटरनल फॉर लूप रन होने के बाद हर केस में वो स्टैटिक 1 प्रिंट करता जाए। ओके, सो जब अब ये चलेगा, होपफुली इट विल गिव यू द एप्रोप्रिएट आउटपुट, दैट्स इट। नाउ यू आर गेटिंग द एग्जैक्ट आउटपुट दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो अभी आपने देखा कि हमने क्या किया, जैसे ये लूप ने अपना काम खत्म किया, इस लूप ने काम खत्म किया, इसने 1 जनरेट कर दिया। ठीक है ना, 1, क्योंकि हर केस में फिर 1 1 1 आएगा तो इसने 1 जनरेट कर दिया। अब जब 1 जनरेट होने के बाद जब ये दूसरी आइट्रेशन में गया तो इसने क्या जनरेट किया, इसने 1 जनरेट कर दिया, तो साथ में इसने 1 जनरेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि आधा तो हम अचीव कर ही चुके थे, आधा तो सेक्शन हम अचीव कर ही चुके थे। ठीक है, आधा सेक्शन हम अचीव कर ही चुके थे, तो ये आधा जो सेक्शन है, ये जो हमने 1 1 1 1 राइट हैंड साइड पे हमने जो जनरेट किया है वो इस तरह से जनरेट किया है। ठीक है जी, स्टैटिक। तो ये लॉजिक हो गया स्टैटिक लॉजिक। ठीक है, मतलब लगा के चलो कि आपने अचीव तो कर दिया, लेकिन ये जब हम इसको प्योर पंजाबी लैंग्वेज में बोले तो ये झटका सौदा हो गया। ठीक है ना, झटका सौदा मतलब कि हमने जबरदस्ती अपना लॉजिक लगा के इंप्लीमेंट सा करके हमने इसको प्रिंट कर दिया। आउटपुट सही आ रही है, आउटपुट में कोई दो राय नहीं है, चॉइसेस अगेन योर, आपने ये चलाना, ये चलाओ, परफेक्ट लॉजिक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लॉजिक जो बना है ये काफी हिट्स एंड यू कैन से द ट्राई एंड हिट अटेम्प्ट पे बना है, ट्राई एंड हिट, ट्राई एंड हिट, ट्राई एंड हिट, ट्राई एंड हिट, देन फाइनली यू कैलकुलेटेड इट, ओके दिस वन इज द लॉजिक। तो ये एक फाइनल इक्वेशन बन के आ रही है, जिस इक्वेशन के थ्रू आई कैन अचीव दिस, लेकिन उसके बाद भी मुझे पूरी आउटपुट नहीं मिल रही, तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सही है, चलेगा, नो डाउट, आप इसको चलाओगे तो ये भागेगा दौड़ेगा। लेकिन मैंने फिर बताया कि ये इसका प्योरली मैथमेटिकल वे नहीं है, क्योंकि ये जो एग्जांपल है, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है इंटर में पूछा ही इसीलिए जाता है आपके इसके बिहाइंड का मैथमेटिक्स के बारे में, कि आपको वो चीजों के बारे में ज्ञान है, नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है ना, तो इसका जो मेन रोल है, मेन जो इस क्वेश्चन को पूछने का कारण है, वो कारण ये है कि आपको इसके पीछे छिपा हुआ मैथमेटिक्स बताना है। लेकिन हाँ, अगर क्लास में आपको हीरो बनना है, ठीक है ना, क्लास में आपको हीरो बनना है, या आप कह सकते हो कि आपको किसी को बताना है कि हाँ आई कैन डू द सेम थिंग, तो आप इस लॉजिक से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट विल वर्क फाइन, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, सो आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन। अब मैं जो आगे बढ़ रहा हूं इसके एक्चुअल वे में बढ़ रहा हूं, सो यू कैन कंसीडर दैट थिंग एज ए एक्चुअल वे, कि मैं इसको एक्चुअल वे में इसका मैथमेटिक्स के थ्रू इसको कैसे मैं अचीव कर सकता हूं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वो सीखते हैं। तो वो सीखने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए
अब मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, वो आपने पढ़ रखा है, लेकिन जब तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी चीजें। तो आपको अगर इसको अचीव करना है तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, द बाइनोमियल, ओके, पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट्स एंड कॉम्बिनेशन, ये 4 चीजें हैं। अब आपको 90% बच्चे भूल चुके हैं बाइनोमियल, लेकिन जब मैं उनको दिखाऊंगा तो इमीडिएटली उनके माइंड में आ जाएगा, हाँ सर ये हमने किया हुआ है। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस दैट, so this one is row 0, okay, this one is row 1, okay, so if you make confusing it, so I am writing on this side 0, row 1, row 2, row 3, row 4, row 5, perfect sir, हाँ जी ये तो क्लियर है, आई थिंक नो वन हैविंग डाउट ऑन दिस कॉन्सेप्ट। लेकिन दिक्कत सर आपने जो ये बोल दिया बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट्स एंड कॉम्बिनेशन, थोड़ी सी इसमें हमें दिक्कत है, ये तो कोई बात नहीं, ये तो हमें क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो दिस वन इज 0, ये 0 है। ओके, अगर मैं लिखूं a प्लस b टू पावर 0, अब हाँ सर ये हमने पढ़ा हुआ है, a प्लस b टू पावर 1, हाँ जी सर हमने ये भी पढ़ा हुआ है। सर a प्लस b टू पावर 2, हाँ जी सर हमने ये पढ़ा हुआ है। a प्लस b टू पावर 3, हाँ जी सर हमने ये भी पढ़ा हुआ है। a प्लस b टू पावर 4, हाँ जी सर हमने ये भी पढ़ा हुआ है। a प्लस b टू पावर 5, हाँ जी सर हमने पढ़ा हुआ है। अगर मैं इस फॉर्मूला को ओपन करूं तो ये फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, यही है, आई सपोज हमने पढ़ रखा है। ओके, अब मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, आई थिंक दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर द सेम। तो अब अगर मैं इसको अब ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। अब अगर मैं इसके कोएफिशिएंट्स निकालूं, है ना, ये उसका पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसके कोएफिशिएंट्स निकालूं तो यहां पे कोएफिशिएंट्स क्या है, 1, यहां पे कोएफिशिएंट क्या है 2, यहां पे कोएफिशिएंट क्या है 1, परफेक्ट सर, हाँ जी सर मिल गया, सर मिल गया जी। अगर मैं यहां पे कोएफिशिएंट निकालूं 1 3 3 1, हाँ जी सर परफेक्टली सर मिल गया, है ना, यही है, यही चीज है ना, आई वी गेट इट। सो ये फॉर्मूला अपने को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर ये फॉर्मूला बना कैसे, सर ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है, तो मैं इसको उठा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। अब शायद आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चालू होगी कि हाँ सर हाँ जी ऐसे ही होता है। तो ये है अपना बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो आपने पढ़ रखा है अपने पूरे स्कूल डेज में, ए स्क्वायर जो हमने रट्टा लगा के रखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो ये हमने रट्टा लगाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये फार्मूला बना कैसे, हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब मैं वापस जा रहा हूं, तो अभी ये आई थिंक इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, क्योंकि आगे भी अगर ये क्लियर हो गया तो आगे भी क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, एनीवन हैविंग एनी डाउट फॉर दिस पॉइंट, प्लीज लेट मी नो इफ, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे से एक बार पूछ लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, ओके थैंक यू, गुड। सो मैं ये उठा रहा हूं, ठीक है ना, मैं ये उठा रहा हूं, ये वाला एक्सप्रेशन उठा रहा हूं। अब इस एक्सप्रेशन को मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं कि ये बना तो बना कैसे। ओके, सो वापस आते हैं, ये मैंने उठाया a प्लस बी टू पावर 5, ये मैंने उठाया, ठीक है ना। जब मैंने इसको खोला तो ये क्या है, अब इसको अगर बनाना है तो ये फॉर्मूला बनता कैसे है, पहले वो देख लेते हैं। 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 0, ठीक है जी, a टू पावर 5 b टू पावर 0, प्लीज चेक कर लेना मैं कहीं पे कोई मिस्टेक ना कर दूं, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, 5 c1, ओके, a टू पावर 4 b टू पावर 1, ओके, प्लस 5 c2, ओके, a3 प्लस b2, ओके, प्लस 5 c3, ओके, a स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ओके, प्लस, चलो यहां पे लिखते हैं प्लस 5, द नेक्स्ट वन इज 5c4, ओके, 5c4
A become 1, B become 4 plus 5C5 A0 B5. I think this one is the entire way when I open it. Okay, so this one is your you can say the binomial expression. This one is the polynomial expression, the entire, and this one is the combination. चलो जी, अब जब मैंने इस फॉर्मूला को खोला, ये मैथमेटिक्स है, उसके बिहाइंड सारा। अब जब मैंने इस फॉर्मूला को ओपन किया, अब जब मैं इस फॉर्मूला को खोल रहा हूं, तो मैं सबसे पहले ये उठा रहा हूं कि इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, कोफिशिएंट्स कैसे निकालूंगा। तो कोफिशिएंट निकालने का लिए मेरे पास है 5C0, ओके, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो अपने पास क्या आया, अपने पास जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 1 आता है। ठीक है जी, 1 आता है, यानी कि हमने अचीव कर लिया यहां पे 1 a टू पावर 5 b टू पावर 0, है ना। कोफिशिएंट अपने पास 1 आ गया। अब मैं फिर से उठा रहा हूं, अब मैं एक और उठा के आपको सोल्व करके दिखाता हूं। तो अब मैं जो सोल्व करके उठा रहा हूं, 5C1 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, देन आई अचीव दिस 5, परफेक्ट, आई अचीव दिस कोफिशिएंट, दैट इज द 5 a टू पावर 4 b टू पावर 1, परफेक्ट। ठीक है, फिर मैंने ऐसे ही इसी को भी सोल्व किया, मैं उठा नहीं रहा, मैं सीधा सोल्व करके बता रहा हूं, 10a क्यूब प्लस b प्लस, उसके बाद मैंने फिर इसको सोल्व किया, अगेन आई गॉट 10 a स्क्वायर b क्यूब। ठीक है जी, फिर मैंने इसको उठाया, मैंने इसको फिर सोल्व किया, तो मेरे पास आया 5a1 b4। ठीक है, उसके बाद जब मैंने इस पॉइंट को सोल्व किया तो मेरे पास आता है 1 a0 1 दैट्स b5। ओके, सो आई गॉट दिस। नाउ यू कैन चेक इट आउट। अगर मैं इसका कोफिशिएंट निकालूं तो मेरे पास कोफिशिएंट्स क्या है इस पूरे a प्लस 5 अपने a प्लस b बाइनोमियल होल्स टू पावर 5 इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन के मेरे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो ये है 1 5 10 10 5 1। अगर मैं इसको मैच करूं, है ना, अगर मैं इसको मैच करूं तो अब आप ध्यान से देखो, 1 5 10 10 5 1, परफेक्ट परफेक्ट। यानी कि सर मुझे कॉम्बिनेशन निकालना है, और कॉम्बिनेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको फैक्टोरियल, है ना, यानी कि दो चीजें आपको अपने कोड में इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। दो प्रोग्राम है सिर्फ, फैक्ट एंड द सेकंड वन इज योर कॉम्बिनेशन, दैट्स इट। ओके, तो ये दो का मेन लॉजिक है जो आप यूज करो, क्योंकि अपने को ये चीज कैलकुलेट करनी है ना, अपने को ए बी से कोई लेना देना नहीं है, अपने को किस चीज से लेना देना है, अपने को इस फॉर्मूला से लेना देना है। लेकिन ये फॉर्मूले में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने को ये चीज कैलकुलेट करनी है। यानी कि अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि 5 पावर फिर 0, ओके, 5 पावर फिर 1, यानी कि ये i के लिए काम करेगा और ये किसके लिए काम करेगा, ये j के लिए काम करेगा। और हम क्या निकालेंगे, हम i की वैल्यू का फैक्टोरियल निकाल करके कहता हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। 0 के लिए हम फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर हम 1 के लिए फैक्टोरियल निकालेंगे, एंड सो ऑन। दिस वन इज द सॉल्यूशन फॉर द सेम। अगर मैं अब फाइनली, अब आपको ये पता लग गया होगा कि अपने को ये काम करना है। अगर मैं इसको फाइनली लिखूं, है ना, अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को फाइनली लिखूं तो मेरे पास क्या लिखा जाता है, तो मेरे पास ये कॉन्सेप्ट लिखा जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए 0C0, ओके, इसके लिए 1C0, ओके, 1C1, ठीक है ना, इसके लिए 2C0, ओके, 2C1, परफेक्ट, 2C2। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो है ही कुछ नहीं, दिखने में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। 3 3C1, ओके, 3C2 एंड 3C3, ओके। इसके लिए 4C0, ओके, 4C1, ओके, 4C2, 4C3, 4C4 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब आप देखो, अब आप ध्यान से देखो, 0 रो 0 कॉलम, है ना, 1 रो और कितनी बार चल रही है, 0 और 1 कैलकुलेट क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन, दैट्स इट। अब सेकंड टाइम में रो दूसरी हुई, कितनी बार चला, 2 बार चलेगा। जे लूप कितनी बार चलेगी, 0 1 और 2, दैट्स मीन जितनी आई की वैल्यू है उतनी बार जे लूप इंप्लीमेंट होगा।
और जब जब इंप्लीमेंट होगा तो किसके लिए इंप्लीमेंट होगा, तो दो वैल्यूज पास होंगी कॉम्बिनेशन के अंदर, जो हमें क्या फाइंड आउट करके देगा, 2 और 0 के साथ कॉम्बिनेशन, 2 और 1 के साथ कॉम्बिनेशन का फार्मूला, 2 और 2 के साथ कॉम्बिनेशन का फार्मूला, और जो वैल्यू आएगी वो यहां पे अपने को क्या करनी है, प्रिंट करनी है। तो ये इसका लॉजिक है। I think everyone clears about the mathematics behind it so that I can move further for the practical implementation, because यही इसका मैथ है और आपको लगा होगा कि कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज एक्सप्लेन। If you clear this concept, just raise your hands. हाँ जी, प्लीज raise your hand if you clear this concept. Okay, good. क्योंकि यही इसका मैथमेटिक्स है जी, ठीक है जी, यही इसका मैथमेटिक्स है। अब देखो, अब है कुछ भी नहीं इस कोड के अंदर, है कुछ भी नहीं इस कोड के अंदर। आपको यू आर सपोज टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ओनली with the I and J, respective with I and J, 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 that's it. अब कॉम्बिनेशन निकालने के लिए आपको फैक्टोरियल भी आना चाहिए, ठीक है। जब वो फैक्टोरियल रिटर्न हो जाएगा आपके पास, तो आप क्या निकाल दोगे, कॉम्बिनेशन निकाल दोगे। वो कॉम्बिनेशन की वैल्यू को आपको प्रिंट करना है, दैट्स इट। और कॉम्बिनेशन निकालना किसके लिए है, तो सबसे लिए जो पहला कॉम्बिनेशन निकलेगा वो 0 0 के लिए, फिर निकलेगा, ठीक है जी, फिर निकलेगा 1 0 के लिए, फिर निकलेगा 1 1 के लिए, ठीक है जी, फिर निकलेगा 2 0 के लिए, फिर निकलेगा 2 1 के लिए, ठीक है जी, फिर निकलेगा 2 2 के लिए। फिर जब ये वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी, वो वैल्यू को आपको प्रिंट करना है। अब मैं पूरा स्क्रैच लेवल से ये कोड बना रहा हूं, पूरा स्क्रैच लेवल से, ठीक है जी। मैं फैक्टोरियल का फॉर्मूला भी आपको दिखा रहा हूं। मैं एक फंक्शन बना रहा हूं फैक्टोरियल के लिए, एक फंक्शन मैं बना रहा हूं कॉम्बिनेशन के लिए, और तीसरा जो अपना मेन काम होगा वो तो यही है, स्टार सीरीज। बस उसमें जो वैल्यूज कॉम्बिनेशन हमें रिटर्न करके देगा, बस वो प्रिंट करनी है, बस बात खत्म, ठीक है। तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकल ही दिखाता हूं, आपको कोड अच्छा लगेगा देख करके। तो ये मैथमेटिक्स था जी, दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लेकिन है कुछ भी नहीं। अगर आपको उसका मैथमेटिक्स समझ आ गया तो ये लगा के चलो कि इस कोड में कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको कर रहा हूं डिलीट, क्योंकि ये अपना हो गया था झटका सौदा, है ना। क्योंकि अब हमने इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स के लिए आपको मैं दो फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूं फैक्टोरियल वाला कोड भी, अब मैं वो सिखाने तो नहीं वाला, अब आपको इतना तो आ ही गया है। तो मैं एक फैक्ट का कोड लिख रहा हूं। फैक्टोरियल पता ही है आपको कैसे निकालते हैं। अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं आपको, अगर आप भूल चुके हो तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूं, मेरा पेन चल नहीं रहा। ओके, 5 फैक्टोरियल, तो आपको याद होगा 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 5 फैक्टोरियल है, ठीक है। 6 का निकालना है 6 इंटू 5 इंटू 4 एंड सो ऑन। 3 का निकालना है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये फैक्टोरियल का कोड है ना, ये ऐसे हम फैक्टोरियल निकालते थे, अब आपको याद आ गया होगा। तो मैं अब सीधा इसका कोड लिखने जा रहा हूं। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है। फंक्शन हमें पता है क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको इन डेप्थ कर चुके हैं। तो ये मेरा f इज इक्वल टू 1 है। इनिशियली 1 क्यों ले रहा हूं, अगर आप 0 ले लोगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग दैट बिकम द 0, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। तो एक while लूप है, अब इसके बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है। n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जब तक वो 1 से बड़ी है या उसके बराबर नहीं हो जाती तब तक कहता वो चलता जाएगा। और अब चलता जाएगा, अब आपको बताया है वो 5 4 3 2 1, तो आपको n इज इक्वल टू n माइनस 1 करना है, ठीक है ना। लेकिन उसको करने से पहले अपने को क्या करना है, अपने को f इज इक्वल टू f इंटू n करना है। लो जी, ये फैक्टोरियल बन चुका है, ये बन गया आपका फैक्टोरियल, ठीक है। बस अब रिटर्न क्या करना है, अब आपको रिटर्न करना है, ठीक है जी। अब आपको रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है जी, आपको f को रिटर्न करना है। लेकिन ये लेगा कौन सी वैल्यू, सर जो आप वहां से दोगे। लो जी, तो ये फैक्टोरियल, अगर आप इसको रन करना चाहते हो तो यू कैन चेक आउट द आउटपुट। ओके, आई वांट टू सी आउट फैक्ट ऑफ द फैक्ट ऑफ, यू कैन से द 5। ओके सर, कैन यू प्लीज प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ 5। तो जब मैं इसको रन कर रहा हूं तो आप देखो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है, होपफुली 120। ओके सर, टेस्ट फॉर वन मोर टाइम, फैक्टोरियल फॉर 6। ओके सर, अभी अगर मैं इसको रन करूं तो क्या ये फैक्टोरियल हमें देगा, बिल्कुल देगा 720। गुड, फैक्टोरियल हमारा रेडी,
परफेक्टली वर्किंग फाइन। अब हमें दूसरा जो बनाना है वो बनाना है कॉम्बिनेशन। सो इंट ऑफ com करके मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, कॉमी करके एक फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, इंट n एंड r, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि 2 जाएगा i की वैल्यू और j की वैल्यू, ठीक है जी। अब यहां पे कॉम्बिनेशन निकालना है, तो कॉम्बिनेशन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल एक छोटा सा लॉजिक लगा रहा हूं, रिटर्न RETURN रिटर्न, ओके रिटर्न। तो पहले मैंने इस फंक्शन को कॉल किया फैक्ट ऑफ n, ये फैक्ट ऑफ n निकाला, वही फार्मूला जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, डिवाइडेड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस r, ओके n माइनस r जो हमने अभी डिस्कस किया है उसके अंदर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय फैक्ट ऑफ r। लो जी, ये आपका फैक्टोरियल का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अगर मैं यहां पे पास करूं 0,0, ओके 0,0, तो आप मुझे दिखा सकते हो सर 0,0 पे कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? तो क्योंकि पहला हमारा था, आपको याद होगा 0,0, तो क्या कोफिशिएंट्स क्या मिलेंगे हमारे पास, अभी देख लेते हैं। तो ये अपने को एरर दे रहा है क्योंकि हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, ओके। सो 0,0 पे सर क्या हमें सही 1, परफेक्ट सर, बिल्कुल सही आया। सर क्या हमें आप दिखा सकते हो कि जो हम पर उसको देख लेते हैं, अगर वैल्यूज हमें मिल जाएं तो, जो हमने अभी ड्राइंग की थी, नो इससे ज्यादा नहीं जा रहा, ठीक है। तो सर आप मुझे हमें दिखा सकते हो, अगर 5,1 पे है ना, 5 और 1 पे है, इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, देख लेते हैं जी क्या आएगा। ये लो जी 5 आ गया, परफेक्ट परफेक्ट सर। 5 रो और सेकंड पे देखना जरा सर क्या है, यानी कि थर्ड कॉलम पे क्या बनेगा, देखना सर जरा क्या बनेगा, 5th रो के थर्ड कॉलम पे सर 10 बनेगा। सर 4th कॉलम पे क्या बनेगा, सर 10 ही बनना चाहिए, ठीक है ना, 10 ही बनना चाहिए, तो 10 ही बनेगा। ये लो जी, ये लो जी, अगेन 10। सर अब अगर 5th कॉलम पे देखना है तो क्या बनेगा, सर जी ये बनेगा आई थिंक 5, ओके। सर अगर 6th कॉलम पे जाना है तो क्या बनेगा, सर 6th कॉलम पे 1 बनना चाहिए। ये लो जी, आपकी रो पूरी तैयार होगी, है ना। सर 0 कॉलम पे भी एक बार दिखा दीजिए, ये लो जी 0 पे भी दिखा दिया, ठीक है जी, 0 पे भी आपको दिखा दिया, तो 0 पे 1 होना चाहिए, 1 हो गया। अब देखो ये अपना रेडी है काम, है ना, ये अपना काम रेडी है, बस अब इसको फिट किस में करना है, अब इसको जो आपने फिट करना है, आपको इस पैटर्न में फिट करना है। तो इस पैटर्न में फिट करने के लिए आपके पास क्या है, आपने उस फंक्शन को कॉल करना है COMI, कॉमी नाम का मेरा फंक्शन है, उसको अपने को प्रिंट करना है, सी आउट ऑफ प्रिंट, ठीक है जी। अब उसके अंदर जो डेटा पास होगा वो क्या होगा, वो आपका पास होगा रो और कॉलम, ठीक है जी, रो और कॉलम पास हुआ। प्रिंटिंग करने के बाद कहता जी मुझे स्पेस भी चाहिए, लो जी, अब ये आपका कोड बिल्कुल रेडी। ये देखो कितना छोटा सा कोड, ये प्योर मैथमेटिक्स, एंड यू विल गेट द प्रॉपर आउटपुट। अब मैं अगर इसको चलाऊं तो क्या देखते हैं, क्या ये सही आउटपुट देता है या नहीं। ये नहीं, ये इसने कहीं पे गड़बड़ कर दी, हमने कहीं पे गड़बड़ की है। देखो कहां पे गड़बड़ की है, आई और के, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। एक मिनट, तो इसको एक बार दोबारा से चला के देखते हैं, आउटपुट तो इसकी सही आनी चाहिए, तो कहां पे गड़बड़ हुई है चेक करते हैं थोड़ा सा। जे दिस वन के लेस देन आई, कॉम्बिनेशन ऑफ आई के परफेक्ट है, चलना चाहिए। लेस देन इक्वल्स टू, एक बार 5 के लिए इसको चला के देखते हैं। चलना चाहिए, कोड तो सही है। 1 2 1 1 1 मिस कर रहा है, लास्ट कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। सेव किया है, सेव करो, देखो कहां पे हमने मिस्टेक की है, छोटी सी कोई मिस्टेक है, मिस्टेक ही होगी।
1 2 1 1 3 3 1 चलना तो चाहिए, चल क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने लेस देन लिखा है, इक्वल्स टू नहीं लिखा, आई की वैल्यू को भी तो लेना है। लो जी, नाउ यू विल गेट प्रॉपर आउटपुट। तो ये आपका कोड एकदम से रेडी आपके सामने, ठीक है। 6 के लिए चलाना है तो 6 के लिए भी चलेगा। ये लो 6 के लिए चला देते हैं, ठीक है जी, 6 के लिए चला देते हैं। ये लो, ये लो, ये अब 6 के लिए चल रहा है, ठीक है। आई थिंक, हाँ जी, एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज लेट मी नो। तो हमें कम से कम 40 मिनट लगे इसको पूरे को सॉल्व करते करते। हाँ जी, एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? तो ये आपका पूरा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पिक क्लिक कर लो और अपनी तरफ से खुद बना के देखना। देखो दो चीजें थी इसमें इंपॉर्टेंट, द फैक्टोरियल एंड द सेकंड वन इज द कॉम्बिनेशन दैट यू आर सपोज्ड टू फाइंड इट आउट दीज टू वैल्यूज। बस वही वैल्यूज को अपने को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना। और मैंने आपको पूरा सिनेरियो दिखाया है कि ये वैल्यूज बन कैसे रही है, ठीक है ना। ये वैल्यूज बन कैसे रही है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जब हमने खोल के उसको कैलकुलेट किया तो वो कॉम्बिनेशन आया, ठीक है। और कॉम्बिनेशन किस लेवल पे आ रहा है, जो हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर रहे थे। और हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन कौन दे रहा है, ये दो लूप्स बना के दे रही है, दो लूप्स बना के दे रही है, ठीक है। ये दो लूप्स हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन बना करके दे रही है। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ओके। आई थिंक नाउ द क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, प्लीज जस्ट लेट मी नो बिफोर प्रोसीड फर्दर। तो ये है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो आई होप अब आप इसका आंसर खुल करके दे दोगे कि सर ये काम जो है वो ऐसे करता है। हाँ जी, प्लीज if you have any doubt please let me know before proceed further, and I suppose you guys don't have any doubt. हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर जो हमने पहले किया था कॉल वो भी सही है ना? हाँ, वो भी सही है, वो भी सही है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन देखो बात ये है कि अब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो अगर ये चीज बताओगे तो इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ जाएगा। वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पूरा बता दो, सर वी कैन अचीव दिस थिंग विद टू वेज, वन इज द लॉजिकल एंड द सेकंड वन इज द प्योर मैथमेटिकल। वो भी सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि आपको इंटरव्यू में जब पूछा जाता है, सीधी सी बात है, जब आप ये चीज बताओगे तो वो इम्पैक्ट अच्छा छोड़ के जाएगा कि इस बच्चे को यार मैथमेटिक्स पता है। और जिस बच्चे को प्रॉब्लम का, मैंने देखो अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स करवाई हैं, हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मैंने आपको मैथ के साथ एसोसिएट करके बताए। कोई भी ऐसी एग्जांपल बता दो जिसमें मैंने आपको रियल टाइम मैथमेटिक्स नहीं बताया हो, ठीक है ना। तो हर एग्जांपल, मैं शुरू से बोल रहा हूं, हर प्रॉब्लम अपने साथ मैथमेटिक्स लेके आती है, हर प्रॉब्लम। बस हमें उस प्रॉब्लम का मैथ्स को पकड़ना है। अगर हम उस प्रॉब्लम के मैथ को पकड़ लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के साथ। बस मेन इंपॉर्टेंट होता है उसके पीछे छिपा हुआ राज, और वो राज है वो मैथ है। अब मैथ भी देखो, हमने कोई हाई लेवल मैथ यूज नहीं किया, हमने सिर्फ आपके +2 लेवल तक का ही मैथ इंप्लीमेंट किया है, उससे ज्यादा नहीं इंप्लीमेंट किया। और मैक्सिमम जो मैथमेटिक्स हमारा इंप्लीमेंट हुआ है वो 9th और 10th का हुआ है। और कई जगह पे हमने 2nd क्लास का भी इंप्लीमेंट किया था जब हम मॉड्यूलस निकाल रहे थे। तो देखो जी, मैथ इज इंपॉर्टेंट वन। और मैं शुरू से बोल रहा हूं, अपने आप को डिग्रेड नहीं करना कि आपको मैथ नहीं आता। आपको मैथ आता है भाई, आपने 10th किया है, आपने +2 भी किया है, और कई बंदों ने डिप्लोमा भी किया है। तो आपको मैथ क्यों नहीं आता? आपने बीटेक का मैथ भी क्लियर किया है, मैथ तो आपको आता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बस आपको उस मैथ को फिट नहीं करना आता। और ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप बोलो कि हाँ मेरी ये 2 घंटे की क्लास लगा लो, लगाने के बाद आप सब बोलो मैं जेम्स बॉन्ड बन गया, अब मुझे सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। सब कुछ तो मुझे भी नहीं आया अभी तक, ठीक है ना। सब कुछ तो मुझे भी नहीं आया, और ना किसी को आ सकता है। कोई भी अगर यहाँ पे आके आपको बोले ना मुझे सब कुछ आता है जी, आई एम जेम्स बॉन्ड इन प्रोग्रामिंग, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि प्रोग्रामिंग इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, चाहे 7 जन्म लेके आ जाओ, कुछ ना कुछ इन्वेंट होता ही रहेगा उसमें। मम्मा बात कर, ठीक है, वो कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें आता ही रहेगा। तो कीप दिस पॉइंट इनटू माइंड, ओके। तो कीप ऑन प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिस। देयर इज ओनली वन एंड वन
way to learn the programming. That is, you must have to be keep on practice. That's it. Okay. So I think this problem is clear to everyone. I explained this into the great way, and I took approximately 30 to 40 minutes to explain this concept. And I am assuming that now everyone clear about the at least 50% mathematics behind it. And the mathematics we discussed, that mathematics belongs to your 10th standard, or I might be into the 9th standard, that we learn all about all these things, the coefficients, the binomial expression, the formulas that we cram at that time. Okay. So moving ahead, anyone having any question before proceed further, please let me know. अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरे से एक बार पूछ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से एक बार पूछ सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। ओके, so I'm assuming that everyone is clear to everyone. So thank you. I'm moving ahead. Okay, so yesterday we described in great detail the concept of the strings, and we performed some of the programs regarding this thing in great detail. And I'm moving a little ahead, and there I will try to discuss as many as the methods, okay, or you can say the functions which are available with the string. Okay, I will try to cover all. Okay, so the first function name. So how the most important is how you can use these functions into your code. For using this function into your code, it is mandatory that you must have to be include, okay, that library. That library name is string. दादी मम्मा से बात कर बेटा. String.h. Okay, that library is string.h. So it is mandatory that whenever you are supposed to use the string library function, it should be there. Otherwise, you will get the error message if you try to do. You try to impart that particular string library function and you didn't use it, so you will get the error message. Okay, so very good. So the first function is strcat. Okay, so this function is used for concatenation. Okay, if you want to do the concatenations of this string, then this function will be used to concat the two strings. For example, character. Okay, this one is the source string. Okay, this one is a source string. The source string mean, let's suppose I'm marking this string as technologies. Okay, the source, that is, let's suppose the technologies. Okay, that one is my source string, that is technologies. And another one is a target string. Okay, the target string is US data. The target string is US data. Okay, so now what I am doing, okay, I'm concatenating these two strings. Okay, I'm concatenating these two strings. So how I can do? Very simple, strcat. So strcat will be used, and target. Okay, your target string, the name of that string is T. Okay, and your source string is S. Okay, and when you print Cout of T, what output you will get? You will get the output, that is the US data technologies. That's it. Okay, so this one is the first function, that is the for concatenation of the two string. If you want to do the concatenate of two strings, then you can use this one. So target string, whatever the string inside it, after that this string will be concatenated. If you perform S, T, then what will be happen? Technologies US data. Okay, so this is one very simple function for concatenation of two strings. So I think you guys are clear about it. So another one. Screen is not visible. सर अब विजिबल हो रही है पहले हो नहीं रही थी सर, पहले टीम शो हो रही थी।
अच्छा, तो अच्छा चलो, जिनको नहीं हो रही थी एक बार देख लो. So this one is a the function which is available into the string library, that is the strcat, and this one is your source string, this one is your target string. Inside the source string, the technologies inside the target string, that is the US data. And what you perform this function strcat t and s. When you concatenated these two strings, then you will get the output, that is the US data technologies. Okay, so this one is the first method. Okay, I will try to cover as much as. So this one is the first method. Okay, the second one is your second one is strcopy, strcpy. Okay, so this one is the name specify itself that you are supposed to doing the copy the given number of character from one string to another string. Okay, that you are supposed to copy the number of characters. So how you can perform? Let's suppose this one is a character. Okay, care of source. This one is my source string, and inside my source string that I am writing welcome to US data. Okay, welcome to US data. So I welcome you all for US data, and my target is care of target. Okay, let's suppose the target is taking 20, and this time this one is the empty because I didn't write anything into this string. This one is the empty string, empty container that you can consider like this. So strcopy, okay, strcopy, what you want to copy, okay, from inside target, I want to copy from source, and how many characters that you want to copy. Okay, let's suppose I want to copy only 5 characters. Okay, I want to copy only 5 characters. So what will be the output? So the output would be when I print this target. Okay, when I print this target, the output would be WELCO. Okay, so it will copy the 5. Okay, the 5 characters 1 2 3 4 5. By default the indexing always start from 0, so it will copy 0 to 4. Okay, 0 to 4 character, that is the welco. So this one is the copy string. Okay, so another one is the string len. Okay, the string len. So let's suppose you want to copy the entire thing, so you don't need to pass anything over here. Okay, so you don't need to pass anything over here. Here you can write this, that's it. If you want to copy entire thing, okay, you want to copy this entire into this. Okay, so but the size of this one should be greater, that should be 100. So this is the another way. If you want to copy the specific character, then you have to pass the third parameter, that is the 5 10 or 4. If you want to copy the entire thing, there is no need to pass any kind of special any kind of integer over there. Okay, so the next one is string length, strlen. Now we know it very well because we perform the mathematics behind it manually. But the inside string, that there is a function which is available who will automatically give you the length of a string. Okay, the length of a string. For example, the length is equal to strlen. Okay, so my string was, let's suppose, the source. Okay, so it will return me the integer value, and that integer value, let's suppose inside my source there is the name, that is NITIN. That's mean it will return you the 5. Okay, the length is always start from 1. Keep this point into the mind. The counting of the length is always start from 1, but the index is always start from 0. This is the important one in the context of the len function. Whether you are using C, whether you are using this Python, whether you are using this C++. In case of Java as well. Whatever the language that you are using, whenever you are performing the string len or the len function, that is available into the Python, but here the strlen. So in this method, you will get the counting always start from 1. Okay, but the indexing is always start from 0. This is the important one to keep this point into the mind. Okay, and this is a useful function in the context of string, very much useful function. The function name is strlen, which return you the length of a string. Okay, so I think this one is clear to everyone. Now the next one is strcmp, string compare. Okay, string compare, return 0. Okay, it will return 0
Okay, when it will return 0? If, because this return type is 0, okay, less than 0 or greater than 0. Understand this point. So this function will return you the value 0 than 0, that's mean the value is -1, greater than 0, the value is +1. Okay, so understand it. It returns 0 if string 1 is same as string 2. String 1 is same as string 2. Okay, if your string 1 and your string 2 both are same, then it will return 0. Okay, if string 1 less than string 2, okay, if string 1 less than string 2, then it will return minus value. Okay, it will return minus value. If string 1 greater than string 2, then it will return you the positive value. So this one is the return type of the string compare function. So it will compare the entire string and it will return you the 0 if string 1 and 2 both are same. Okay, the length of both are same. If string 1 is less than string 2, then it will return you less than 0, otherwise it will return you greater than 0. Okay, for example, char of the first is the string 1, that is the US, okay, and char of str2 that is the data. Okay, so these two strings are there, the US and data. So I want to compare. Okay, I want to compare. So let's suppose I want to compare. Let's suppose this one, int j. Okay, int j. So you are comparing it, the method that you are using strcmp. Okay, and you are passing this str1 and str2. Okay, so you are passing it. So in this case, you will get the output that is the -1. Okay, why -1? Because string 1 is greater than string 2. So it is comparing based on the first character. Okay, the comparison is based on the first character because the priority of the u, because the ASCII value of the u is greater than the ASCII value of d. So always the comparison is done on the first character. If the first character is same in the both of the cases, the first character is same, then it will look out to the second character. So keep this point into the mind. Okay, keep this point into the mind. And let's suppose if I say strcmp, okay, strcmp, you will get the output. Let's suppose I want to str1 comma and I am writing the same US. So the output would be 0 because both of the strings are same. I am comparison this string 1 to US and both contain the same, that is the US, and you will get the output that is the 0. Okay, so this one is the string compare. String compare, keep this point into the mind. It will always comparison first to first character. Okay, so the priority of the first character is higher than the this string, so it will return you the this string as a greater string. Okay, so the next one is which one is that one, the which can the next one 6 7 upper and lower, that can be also there, the upper and lower. You want to convert str, you can say the str upr. Okay, upr, this one the uppercase and this one is the str lwr. So this one is the lowercase. So these are the two uppercase and the lowercase, and we know it very well. No need to explain, I suppose, this point because you know this thing in great detail. Okay, so another one is what the next one can be. Subset was there. String reverse. String reverse is there. Okay, and tokenizer is also there. Important one, string tokenizer. Again, that is very important. str, okay, strtok, okay, string token. So it will convert your string into the tokens. Okay, for example, it is important one, little important. So let's suppose this one your string int main. Okay, int main. So let's suppose your string is
s is 50 and you are writing like this, for example test, okay, mst, okay, education. Okay, so now understand it. You want to convert, okay, you want to break this string whenever the comma is there. Okay, let's suppose this one is the string 22/8/2018. Okay, this one is string and you want to break this thing whenever the hyphen is there. Okay, but this point of time the comma is there, that you want to break out this thing whenever the comma occur. Okay, just give me 1 second. Just give me 1 second. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, सोए नहीं हो? 12 बजे हैं हमारी तरफ और आपकी तरफ तो 11 बजे होंगे, 1 बजा होगा रात का। अच्छा, आपके 7 बज गए, 5 घंटे का फर्क है ना सर। मैं ना क्लास ले रहा हूँ, कोई अर्जेंट था तो उसके बाद कॉल करूँ? ओके डन, मैं क्लास 12 बजे फ्री हो रहा हूँ, फिर करता हूँ आपको। ओके, सो the function that we are discussing, which was that the tokenizer. Okay, so tokenizer basically used whenever you want to do the tokenization. Very important in काफी प्रोडक्ट्स के अंदर ये बहुत यूज होता है कि आपको टोकेनाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, आपको स्ट्रिंग को तोड़ना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मान के चलो आपकी ये स्ट्रिंग आ रही है और आप उसको टोकन करना चाहते हो। ठीक है, आपको अब इसको जैसे अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ही देता हूँ इसकी, रियल टाइम यूज केस की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप जो डेटा हायर आ रहा है आपके पास ना, वो डेटा माईसीक्वल से आ रहा है। ठीक है, वो डेट ही आ रही है आपके पास, जो डेटा आ रहा है वो माईसीक्वल में आ रहा है, लेकिन वो डेट ही आ रही है। लेकिन आपको वो डेटा ओरेकल में ट्रांसफर करना है। अब जो माईसीक्वल का डेट फॉर्मेट है वो है dd mm yyyy, और ओरेकल का जो डेट फॉर्मेट है वो ये है mm dd yyyy। ओके, तो ये दोनों का डेट फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट है। तो जब दोनों का डेट फॉर्मेट डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है कि आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। यानी कि प्री प्रोसेसिंग करने का मतलब आपके पास ये फॉर्मेट आ रहा है, आपको उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर आपको माईसीक्वल से डेटा ट्रांसफर करना है आपको ओरेकल के अंदर। तो उस टाइम पे ये चीजें बड़ी यूज होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो जो मेथड है उस मेथड का नाम है strtok, और वहां पे जो पाइथन के अंदर मेथड है वो स्प्लिट नाम का मेथड है। ओके, यू कैन स्प्लिट ए स्ट्रिंग। सो आई थिंक जावा में भी स्प्लिट है, और वो जो रिटर्न करता है वो एरे रिटर्न करता है। ठीक है, ओके, सो अब इसमें भी जो रिटर्न होता है वो कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न होता है। ठीक है ना, तो मैं एक कैरेक्टर पॉइंटर ले रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेथड को यूज कर रहा हूँ p के अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ, strtok, क्योंकि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो एड्रेस है। ठीक है ना, इसकी जो रिटर्न टाइप है वो एड्रेस है, क्योंकि ये एक एरे बनता है। ठीक है ना, अब एरे अपने आप बन रहा है तो ऑब्वियस है आपको उसका एड्रेस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो उसको डिफाइन नहीं किया, तो आपको उसका एड्रेस लेना पड़ेगा। तो वो एड्रेस कहां से मिलेगा आपको, ये मेथड आपको एड्रेस रिटर्न करता है। ठीक है, और मतलब बेसिकली पॉइंटर कैरेक्टर रिटर्न करता है। ठीक है, अब पॉइंटर है तो ऑब्वियस एड्रेस है। तो अब इसके अंदर आपने इसको कॉल किया strtok मेथड। ठीक है जी, अब इसके अंदर किसको आप करना चाहते हो, आपको ये स्ट्रिंग को करना चाहते हो। किस बेसिस पे करना चाहते हो, कहता जी इस बेसिस पे करना चाहता हूं। लो जी, अब आपकी जो स्ट्रिंग है, जैसे स्ट्रिंग में कोमा आया है ना, जैसे स्ट्रिंग में कोमा आया वो ब्रेक होगी, यानी कि वो चिथड़े चिथड़े उसके उड़ गए, अगर हम इसको लेमैन टर्म की भाषा में यूज करें। ठीक है, तो इससे ब्रेक डाउन, स्प्लिट इट आउट। तो अब आपको इसको प्रोसेस करना है। तो लास्ट कैरेक्टर आपको पता है, कहता मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूं जब तक p नॉट इक्वल्स टू नल है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि अगर पॉइंटर को आपको आगे प्रोसेस करना है तो तब तक करना है जब तक p की वैल्यू नल नहीं हो जाती। और आपको क्या करना है, सी आउट ऑफ, और यू कैन से द स्ट्रिंग। ओके, द स्ट्रिंग किसके अंदर है, p के अंदर है। ठीक है जी, और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से p इज इक्वल टू strtok, यानी कि वो तोड़ता जाएगा, एक पॉइंटर तोड़ता जाएगा। ठीक है जी, और वो उसको आगे प्रोसेस करता जाएगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा ट्रिकी सा लॉजिक है, तो आपको कुछ इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देखते हैं। कहता मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको तोड़ा। ठीक है, जब इसको तोड़ा तो इसने क्या किया, मुझे एक
पॉइंटर रिटर्न कर दिया, ठीक है ना, एक पॉइंटर रिटर्न कर दिया। अब जब पॉइंटर रिटर्न हो गया तो अब उस पॉइंटर को मैंने तब तक प्रोसेस करना है जब तक वो नल ना हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली नल आएगा, ठीक है। जब ये तोड़ के देगा तो एंड में आपके पास एक नल आ जाएगा, पॉइंटर जब यानी कि ये खत्म हो चुका है। तो जब आपने इसको नल किया, ठीक है ना, जब आपने इसको नल किया और आपने क्या किया, सी आउट ऑफ पी किया, जब सी आउट ऑफ पी किया तो आपके सामने जो पहली वैल्यू थी वो आ गई। उसके बाद इसने फिर तोड़ा। अब जब इसने फिर तोड़ा तो इसने उसको फिर से प्रोसेस किया, जैसे ही कॉमा आया फिर तोड़ा, और ये क्या हो गया, ये उसने आपको अगला वर्ड दे दिया, ठीक है। अब मैं जब मैं तोड़ रहा हूं तो मैं किस बिहाफ पे तोड़ रहा हूं, कि मैं नल बिहाफ पे तोड़ रहा हूं, कि जैसे ही नल आता है तो वो उसको तोड़ दे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा लॉजिक है, आपको थोड़ा इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन में ये बड़ा सिंपल है और जावा में बड़ा सिंपल है। जावा और पाइथन में क्या है, ये सिंपल सा आपको क्या करेगा, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है तो वो आप अगर उसके ऊपर स्प्लिट मेथड लगाओगे तो वो आपको एक एरे या लिस्ट दे देगा। लेकिन यहाँ पे जो वो रिटर्न कर रहा है वो फंक्शन पॉइंटर करेक्टर को रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो गिवन करेक्टर को रिटर्न कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आपको, अगर आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी है तो कुछ इस तरीके से ये चीज इंप्लीमेंट होगी। अगर आप उसको कंटिन्यूटी में पढ़ना चाहते हो, आप उसके बाद उसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाना चाहते हो, तो दिस वन इज ए वे। तो ये एक तरीका है, ठीक है। तो मैं इसका शायद मेरे पास कोई ना कोई बना हुआ कोड होगा, कोई रियल टाइम का इसके अंदर, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं सो देट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो डीलिंग होती है वो पॉइंटर्स के साथ होती है, लेकिन C++ और जावा के अंदर जो डीलिंग होती है वो होती है आपकी एरे के साथ। तो एरे में थोड़ा सा आसान हो जाता है चीजें। तो लेट मी ओपन दिस सी के अंदर स्ट्रिंग के प्रोग्राम, ओके। सो इसमें भी शायद से स्ट्रिंग इज टेस्टिंग स्ट्रिंग, तो ये इसमें टोकनाइजर यूज किया है, नहीं यूज किया, ओके, नहीं यूज किया। चलो, तो ये भी चलो अच्छा प्रोग्राम है, इसको एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। ये आपका कंट्रोल एफ स्टेटमेंट है, आपकी ये कंट्रोल एफ स्टेटमेंट है। अगर मैं इसको अब रन करूं, मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूं, gcc find.c, ओके। तो ये आपकी कंट्रोल एफ स्टेटमेंट है, ये भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है अगर ये चलता हुआ तो। द करेक्टर फाइंड एट, ओके। अब देखो, अब जब मैं ये कर रहा हूं, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करता हूं तो आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा string, ठीक है ना। जब मैंने स्ट्रिंग लिखा तो ये देखो, ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। तो कहता है यही चीज मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। अब ये इंप्लीमेंट कैसे होगी, फॉर एग्जांपल आपने जो डेटा रीड किया, ठीक है, किसी फाइल में से डेटा रीड किया, अब आप क्या करना चाहते हो, फाइंड आउट करना चाहते हो कि क्या उसमें जो बंदा ढूंढ रहा है वो अवेलेबल है कि नहीं है। अगर तो अवेलेबल है तो यहाँ पे तो देखो हाईलाइट हो चुका है, लेकिन वहां पे हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि हम ग्राफिकल चीजों को यूज नहीं कर रहे। हमें क्या मिलेगा, उस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स, ओके, उस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स। तो स्टार्टिंग इंडेक्स मान के चलो, इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स बना, जो अगर सबसे पहले स्ट्रिंग करें, तो अगर मैं यहां से काउंट करना चालू करूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो मेरे पास जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 25 आया, यानी कि वहां पे ये मिलेगा, ठीक है, वहां पे ये मिलेगा। तो अब कहता है ये चीज मेरे को इंप्लीमेंट करनी है, मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, ये दिस वन इज माय टेस्ट डेटा, ठीक है, जो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो अब कहता, अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं इसके अंदर स्ट्रिंग। तो जब मैं इसके अंदर स्ट्रिंग फाइंड आउट करूंगा तो जो मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स मिलेगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग इंडेक्स मिलेगा वो ये मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो 10 आएगी। तो ये जो आपका प्रोग्राम है, अब मुझे नहीं पता ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे भी अभी याद नहीं है कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास स्टार्टिंग स्ट्रिंग है वो 10 आ रहा है ना, तो ये मुझे बनाना है। तो ये एग्जैक्ट जो लॉजिक बना हुआ है ये आपकी कंट्रोल एफ का लॉजिक है। जो कंट्रोल एफ जो हमने अभी यहाँ पे लिखा ना, ये देखो कंट्रोल एफ, तो हमारे सामने ये विंडो सी ओपन होगी, ये देखो। तो ये लॉजिक अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो ये सारा का सारा लॉजिक है। मेरे पास पाइथन में तो है, बहुत सही चलता है, मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पे ट्राई तो किया हुआ है, क्या ये सही चलता है कि नहीं चलता वो अब मुझे नहीं पता। एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं।
अगर ये चलता हुआ सही तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन पाइथन में मेरे पास फर्स्ट क्लास प्रॉपर बना हुआ है। तो यहाँ पे आई है, तो आई की बजाय मैं यहाँ पे देखता हूँ स्ट्रिंग लिख के देखता हूँ, क्योंकि ये काफी टाइम पहले बनाया था। तो अगर तो ये चलता हुआ तो ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, बड़ा यूजफुल सा कोड है। आई थिंक आई गेट ए एरर। ओके, क्योंकि ये करेक्टर है, तो ये काम तो कर रहा है, लेकिन ये करेक्टर के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो मुझे ए देखना है, ठीक है, तो ए किस इंडेक्स पे आया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अगर मैं इसको चलाऊं, character found at position A string before testing. I found string found positioning. I think this code is not working fine. ये कोड नहीं सही चल रहा। तो आपकी असाइनमेंट है, आपने ये बनाना है, तो मैं आपको रेफरेंस के लिए ये कोड दे देता हूं, तो काइंडली ट्राई टू मेक। लेकिन पाइथन में मेरे पास बना पड़ा है सारा। अगर मैं पाइथन का दिखाऊं तो पाइथन का मेरे पास पूरे का पूरा ये कोड बना पड़ा है। तो आपको एक बार मैं आउटपुट दिखा देता हूं पाइथन वाले कोड की, तो आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ, दिस कैन बी इंप्लीमेंटेड इनटू द सी और C++ एज वेल। तो अगर मैं पाइथन में आपको दिखाऊं रेफरेंस के लिए, तो आपको पता लग जाएगा। फॉर बेसिक्स, माई वर्क, ओके, इनसाइड माई वर्क, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट फाइंडर। लो, अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। स्पेस टेक्स्ट फाइंडर, प्लीज एंटर योर स्ट्रिंग। आई एम, let's suppose I am writing I am learning Python and C, but Python I love a lot. Okay, चलो, so what do you want to find? आप क्या find out करना चाहते हो? Python, I want to find it out Python. Okay, so found at index 14, अगर मैं काउंट करूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 इंडेक्स पे मुझे पाइथन पहला मिला। उसके बाद 31 इंडेक्स पे मुझे पाइथन 2 मिला। ओके, सो फाउंड 2 टाइम्स, तो फाइनल डिसीजन भी मैं ये दे रहा हूं कि 2 बार मुझे पाइथन जो है वो मिला है। ठीक है, एक बार इसको फिर से चलाते हैं। तो दिस टाइम आई एम राइटिंग आई लव Python. Okay, so this time I want to find it out love. So you can check it out on the second index that you got the Python love. On the 7 index again you got the love. Again 12 index again you get the love, and you find it out 3 times. Okay, आपको ये चीज 3 बार मिली है। एक बार इसको मैं फिर चला के दिखाता हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं I love Python. Okay, वो मैं ये लिख रहा हूं hate, तो हेट तो इसमें है नहीं, तो अब आ गया फाउंड 0 टाइम्स, दैट्स मीन नॉट फाउंड। ओके, तो यही होता है ना, जब हम लिखते हैं तो नीचे आ जाता है कि इतने टाइम फाइंड हुआ, इतने। दिस वन इज द एंटायर लॉजिक, ये पूरा लॉजिक है। अगर मैं आपको इसको छोटा सा ये आइडिया दूं, तो ये छोटा सा लॉजिक है। ये देखो, दिस वन इज वेरी स्मॉल लॉजिक, वेरी स्मॉल लॉजिक। तो ये छोटा सा लॉजिक है, लेकिन ये देखो काम कौन सा हो रहा है आपका? कंट्रोल एफ स्टेटमेंट का, कंट्रोल एफ स्टेटमेंट का। अगर मैं इसमें पाइथन लिखूं तो आप देखो कैन नॉट फाइंड पाइथन। ठीक है, अगर मैं इसमें लिखूं, मान के चलो SUB लिखूं, तो SBU लिखता हूं, तो SBU कैन नॉट फाइंड SUB, आई डोंट नो व्हाई सो। ओके, तो अप में जाते हैं, अप में किया तो ये देखो SUB मुझे मिल गया। ठीक है, SUB मुझे मिल गया। ठीक है, तो दिस वन, तो यहां पे तो हाईलाइट हो जाता है, लेकिन बैकएंड पे तो काम तो वही है ना, काम तो वही है। उसका इंडेक्स मिल रहा है, इंडेक्सिंग फाइंड आउट करके आप उसको सिर्फ हाईलाइट कर रहे हो, तो काम यही है। तो बस ये पूरा लॉजिक है, एंड आई होप यू गाइस विल ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस लॉजिक इनटू द C एज वेल। लेकिन वो जो मैंने आपको दिखाया था वो शायद नहीं चला, या उसको थोड़ा सा ठीक करने वाला होगा। तो मैं आपको जो स्ट्रिंग है, ये वाला लॉजिक है। ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, शायद इसमें ना बना पड़ा हो, सेम ही है। तो मैं आपको ये लॉजिक शेयर कर रहा हूं,
तो आई होप यू गाइज विल इम्प्रूव दिस लॉजिक एंड आप मुझे कल सबमिट करोगे इसको प्रॉपर वैसा ही बना के। ठीक है, आप इसको वैसा ही बना के सबमिट करने की कोशिश करोगे। तो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं। ठीक है, ये लो, तो ये मैंने शेयर किया आपको, तो ये आप एक बार देख लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रिंग। ठीक है, और बाकी जो इसमें एक दो फंक्शन और हैं, ठीक है, एक दो मेथड्स और हैं, आई होप यू गाइज विल ट्राई टू डू बाय योर ओन, क्योंकि सारे तो करने इम्पॉसिबल है, क्योंकि 30-40 इसमें ज्यादा ही होंगे, 30-40 से ज्यादा। लेकिन ये वो मेथड मैंने आपको दिखा दिए जो मैक्सिमम यूज है। अगर आपको कुछ और करने हैं तो आप नेट पे सर्च मार सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन इन सी और C++, ठीक है, जिसमें भी आपको ठीक लगे। ये लो, तो ये है, थोड़े से आप इनको ट्राई कर सकते हो। तो आई होप कि आपको पूरी स्लो। ठीक है, तो ये है कुछ, आप इसको ट्राई मार सकते हो। तो ये आपको पूरी डिस्क्रिप्शन और पूरी एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे एंड आई होप यू गाइस विल ट्राई बाय योर ओन। तो आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, लेकिन मैंने जितने इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवा दिए हैं। अगर आपको कोई एरर आती होगी तो आप मुझे एक बार सेंड कर देना कि सर इस फंक्शन में मुझे एरर आ रही है, मैं उसको देख लूंगा और देखने के बाद फिर आपको करवा दूंगा, क्योंकि मुझे भी सारे नहीं आते, बी ऑनेस्ट, मुझे भी सारे नहीं आते, क्योंकि इतने याद रखने बड़े डिफिकल्ट हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री में इन चीजों को याद नहीं रखता। इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करो, उसमें सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि इतने मेथड्स हैं, इतने फंक्शन है। अगर मैं पाइथन की बात करूं तो 100-150 तो मुझे याद होंगे, लेकिन 100-150 के बाद भी वहां पे हजारों फंक्शन है। आप हजारों फंक्शन को याद नहीं रख सकते, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी ही पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन में जाना ही पड़ता है जब आप प्रोडक्शन पे बैठे होते हो। तो वहां पे जाओ, गूगल करो, गूगल में आपको डॉक्स आ जाते हैं, डॉक्स के अंदर आप उसको रीड आउट करके अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन थे जो मैंने आपको दिखा दिए एंड आई होप यू गाइस विल ट्राई बाय योर ओन द रिमेनिंग वन। तो ये आपका जो अब कवर हो गया, आपका स्ट्रिंग भी कवर हो गया इन डेप्थ। ठीक है, तो आपका फंक्शन हमने कवर किए हैं, हमने एक अच्छा प्रोग्राम आज किया है, वेरी यूजफुल प्रोग्राम, काफी यूजफुल प्रोग्राम है, काफी आपके उसमें काफी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो अभी जो हम नेक्स्ट आगे करेंगे कल से, तो कल हम करेंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपको लिंक लिस्ट की तरफ जाना है, क्योंकि स्ट्रक्चर के बाद आई प्रोबेबली स्टार्ट द लिंक लिस्ट। तो मैं लिंक लिस्ट के कुछ प्रोग्राम्स इसके अंदर आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, वो आपका डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको स्ट्रक्चर आना बड़ा जरूरी है। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो फिर आप लिंक लिस्ट को बड़ी आसानी से सीख लोगे। अगर नहीं आता, डोंट वरी, आई विल कवर द स्ट्रक्चर टुमारो। तो मैं कल स्ट्रक्चर को कवर करूंगा, जिसमें हम स्ट्रक्चर को इन डेप्थ कवर करेंगे कि कैसे हम उसमें से काम कर सकते हैं, जो भी उसके अंदर होगा मैक्स टू मैक्स वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर दैट। ओके, एंड इस सैटरडे फिर से आपका ऑनलाइन टेस्ट है। ठीक है जी, ऑनलाइन टेस्ट है, तो जो कल तक हमारा सिलेबस हो जाएगा तो वो सारा सिलेबस सैटरडे को आपकी ऑनलाइन टेस्ट में आएगा। एंड स्टिल संडे आपकी इंटरव्यूज हैं, जो लास्ट बैच बचा है, और दिस इज फॉर लास्ट कॉल फॉर दोज हु आर एब्सेंट इन बैच 1 और इन बैच 2, दे कैन सिट एंड गिव द इंटरव्यू इनटू द बैच 3। ठीक है जी, लेकिन उनकी जो इंटरव्यूज होंगी वो बिल्कुल एंड में होंगी, स्टार्टिंग में नहीं होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वही बैच की रहेगी जो जिसका रेगुलर इंटरव्यू है। ठीक है जी, तो जो बचे हैं दे कैन सिट इनटू दिस थर्ड बैच इफ दे वांट, अदरवाइज तो संडे को तो है ही है, थर्ड बैच की इंटरव्यू है, और सैटरडे को आपका ऑनलाइन टेस्ट है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, प्लीज लेट मी नो एंड आई होप यू गाइस विल ट्राई by your own the rest of the remaining function which are available into the Python. Just try for them, don't keep them remember. आप उसको याद ना तो कर सकते हो, ना तो आपको वो याद रहेंगे। ठीक है, लेकिन रियल टाइम में जब हम बैठते हैं तो हमें इन चीजों के लिए गूगल करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो गूगल करनी ही पड़ती है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, यू कैन आस्क मी, एनीवन और फेवी। ठीक है, एंड आई होप कि आप अपने बिहाफ पे अब इन चीजों को ट्राई करोगे।
तो क्योंकि हम 50 to 60% चीजें कवर कर चुके हैं, क्योंकि यही बेस है, ठीक है, यही बेस है। अब बस आगे इसको यूज करना है क्लासेस में। तो फाइल हैंडलिंग आपको करवाऊंगा, तो फाइल हैंडलिंग आपको C++ के साथ ही करवा दूंगा। जब हम C++ करेंगे तो थोड़ा फाइल हैंडलिंग भी उसमें हम अपने हाथ थोड़े से डर्टी करेंगे, ठीक है जी। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी। ओके, थैंक यू फॉर लिसन मी पेशेंटली, थैंक यू वेरी मच।